جی تو آج ہم اس طرح کا بہت ہی خوبصورت سا اسمال سائز میں ٹیبل رنر بنائیں گے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو یہاں پر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی میجر کر کے دکھاتی ہوں. تقریباً یہ 10 انچ تک بنا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے یہاں پر 2 کلر یوز کیے ہوئے ہیں. آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں 2 کلر یوز کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو. کمنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ بہنوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. 3 پلائی کی وول ہے, جو بھی آپ کلر لے لیں اچھے لگیں گے. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, اللہ پاک حفظ و امان میں ہوں گے. جی تو آج ہم 2 کلر یوز کرتے ہوئے کریشیا پہ اسمال سائز میں ٹیبل رنر بنائیں گے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. تو وول ہماری ہے 3 پلائی کی اور کریشیا نمبر ہے ہمارا 2.5 mm کا. تو سب سے پہلے ہم اس پیچ کلر سے اسٹارٹ لیں گے. اس طرح سے کر کے سب سے پہلے ہم میجیکل رنگ بنائیں گے. یہاں پر یہ دھاگا لے کر ایک چین بنا لیں گے. ایک چین بنانے کے بعد یہاں پر ہم 2 3 چین بنا کے اس میں ڈبل کریشیا بنائیں گے. تو اس طرح سے یہ 2 ڈبل کریشیا بن گئے. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ڈبل کریشیا بنانے کے بعد اب یہاں پر یہ جو میجیکل رنگ والا دھاگا ہے اس کو اچھی طرح سے کھینچ لینا ہے. یہاں پر یہ جو 3 چین بنائی تھی اس کے اوپر والی چین میں سلپ اسٹچ کر کے اس کو اٹیچ کر لینا ہے. اس طرح سے یہ راؤنڈ شیپ میں آ جائے گا. اب یہاں سے ہم پھر سے چین بنائیں گے. 1 2 3 4 5 چین بنانے کے بعد اگلے دوسرے والے ڈبل کریشیا کے اوپر ڈبل کریشیا بنائیں گے. 2 چین, تیسرے ڈبل کریشیا کے اوپر ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے. 2 چین, اگلے ڈبل کریشیا کے اوپر بھی ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے. 2 چین, پھر اگلے ڈبل کریشیا کے اوپر بھی ڈبل کریشیا بنائیں گے. تو اس طرح سے بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. 12 ڈبل کریشیا ہے, 12 ڈبل کریشیا کے اوپر ہم 2 چین کر کے اور 12 ڈبل کریشیا بنا لیں گے. تو اسی طرح سے ہی راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. جی تو اس طرح بناتے ہوئے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے تو 2 چین بنا لی. پھر یہاں پر یہ جو 5 چین بنائی تھی 1 2 اور تیسری والی چین میں سلپ اسٹچ کریں گے. اگر یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں یہاں سے بھی 2 چین بچتی ہے تو درمیان والی جو چین ہوگی اس میں ہم سلپ اسٹچ کر لیں گے. اس طرح سے یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہاں سے پھر سے ہم 2 چین بنائیں گے. 2 چین کے بعد اسی میں ایک ڈبل کریشیا بنا لینا ہے جہاں پر ہم نے سلپ اسٹچ کیا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر 2 ڈبل کریشیا بن جائیں گے. 2 چین, اس والے ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے. 2 چین, پھر اگلے والے ڈبل کریشیا کے اوپر بھی 2 ڈبل کریشیا بنا لیں گے. اسی طرح سے پورا راؤنڈ یہ کمپلیٹ ہوگا. ہر ایک ڈبل کریشیا کے اوپر 2 چین اور 2 ڈبل کریشیا بناتے ہوئے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے پورے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے تو لاسٹ میں 2 چین بنا لی. پھر یہاں پر یہ جو 2 چین بنائی تھی اس کی اوپر والی چین میں سلپ اسٹچ کر کے اس کو اٹیچ کر لینا ہے. تو اس طرح سے یہ اس کا تیسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. اب یہاں سے پھر سے ہم 2 چین بنائیں گے, اس کا چوتھا راؤنڈ شروع کریں گے. اب یہاں پر یہ جو دوسرا ڈبل کریشیا ہے اس کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے. 1 2. تو اس طرح سے یہاں پر یہ 3 ڈبل کریشیا ہو گئے. شروع والے ڈبل کریشیا کے اوپر یہ جو 2 چین کی اس کے یہاں پر یہ ڈبل کریشیا میں کاؤنٹ ہوگی اور دوسرے والے ڈبل کریشیا کے اوپر ہم نے 2 بنا لیے تو یہاں پر یہ 3 ڈبل کریشیا ہو گئے. 2 چین بنا کر فرسٹ والے ڈبل کریشیا کے اوپر ایک ڈبل کریشیا, دوسرے والے ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے. تو اس طرح سے یہاں پر بھی 3 ڈبل کریشیا بن جائیں گے. 2 چین, آگے ہم سیم اسی طرح سے اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے. ایک ڈبل کریشیا, لاسٹ والے ڈبل کریشیا کے اوپر 2 ڈبل کریشیا. اسی طرح سے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے.
जी तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। फिर से यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब लास्ट वाला जो है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और यहाँ पर 2। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन, एक ये दरमियान वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम ये वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनको बना लेंगे। इस तरह से 2 चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, ऊपर से हम जो पैरेट कलर था वो अटैच करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर जोन सा भी कलर अटैच करना चाहें वो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, ये वाला जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, अगले वाले 2 चेन के गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जितने भी 2 चेन के गैप हैं उन सब में हम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। अब इस धागे को हम काट लेंगे, ऊपर से हम फिर से इस कलर के राउंड बनाएंगे। अब यहाँ से ही हमने इसकी बैक साइड से ये पीच कलर का धागा छोड़ा था, यहाँ पर एक चेन बना ली, 2
तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर धागा अगर नहीं काटते तो फिर भी ये ठीक है, अगर धागा काट के फिर से अटैच करें तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगर सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कर लें फिर भी ठीक है। इस तरह से करके यहाँ पर हम ये धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से एक दो चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन करके अब यहाँ पर इस वाले दो चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जहाँ पर 2 चेन का गैप है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर इस 2 चेन के दरमियान में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन कर ली, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन बनाकर अगले वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले वाले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले वाले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर ये जो इस गैप में ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो 3 यहाँ पर चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से 1 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर अगले वाले 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो इसी तरह इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसके 2 राउंड आखिरी बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके हमने राउंड बनाए हैं 1 2 3 राउंड बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चेन बना ली है। ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले गैप में बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर अगले वाले गैप में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम बंद करेंगे। ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। स्लिप नट बांध के इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ। इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 और 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 3 चेन करेंगे। इन 2 धागों में इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर चौथे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके, यहाँ पर ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से चौथे वाले के ऊपर 3 चेन बना के इन 2 धागों में इस तरह से करके, यहाँ पर ये 3 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। आगे फिर ये 3 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये बनाने के बाद 3 ये सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और ये डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी माप भी करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मतलब बना हुआ है। तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें वीडियो को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।